یہ صحیح مطلب ہے نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کہا وہ آدمی اپنے منمانی پر سمجھتا تھا تو اس لیے وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں وطر فلیوتر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے پیشاب کرے اور ڈھیلا لے تو وطر پڑھے. فلیوتر کا مطلب ہے وطر. کہتے ہیں جب تم یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ یہ نتیجہ اس لیے ہوا کہ تم مقلد نہیں ہو، تقلید تم نے نہیں کی، امام حنیفہ سے تم نے نہیں سیکھا، اس لیے تم یہ غلط راہوں پہ جا رہے. ہم نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم تاریخی طور پر کسی زمانے میں اس طرح کا کوئی ایک سچا واقعہ ہمیں بیان کر دو کہ کسی اہل حدیث نے یہ حرکت کی. ایک جاہل گمار بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا. واللہ تعالیٰ ایک جاہل گمار بھی یہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن میں عرض یہ تو ایک بھی سیکنڈ قصے اس طرح سے حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، چیزیں اور کہانیاں کر کے امت کو حدیث و قرآن سے متنفر کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. تو میرے عزیزو کبھی حدیث و سنت کے مابین عقلی تقسیم کر کے کہ حدیث الگ ہے سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے سنت الگ ہے. حدیث پہ چلو گے تو حدیث پر چلنا مثل حدیث پر چلنا آگ کے اوپر چلنے کے بعد ہے. حدیث پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے آگ پر چلنا. اعوذ باللہ. اور یہ حدیث و سنت کا فرق بیان کرتے ہیں کہ حدیث یہ ہے اور سنت یہ. حالانکہ حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں. محدثین کے ہاں اور یہ تقسیم یوں ہوئی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی منمانی، اپنی طبیعت اور تعصب کو بیچ میں لایا تو انہوں نے حدیث و سنت کو دخل حدیث و سنت کے نام فرق کیا. حالانکہ محدثین کے ہاں حدیث و سنت میں کوئی فرق نہیں. حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے. یہ ان کی اپنے دماغی اپج ہے، یہ ان کی اپنی خانہ ساز تقسیم ہے. المہم کبھی کبھی اہل حدیثوں پر کبھی کیا کہ اکثر و بیشتر غلط قسم کے تہمتیں اور الزامات لگا کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں. کبھی کتب احادیث صحیحہ مثلا بخاری ہے، مسلم ہے، ان کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر بھی ضعیف روایتیں ہیں، ارے بخاری کے اندر بھی جھوٹی حدیثیں ہیں. تم بخاری پڑھتے ہو، بخاری کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہو تو کیا تم بخاری کے مقلد نہیں ہو؟ ان سے کہو بخاری نے یہ بتلاؤ بخاری نے اپنی بھی بات کوئی لکھی ہے؟ ہم بخاری کے مقلد اس وقت ہوتے جب بخاری کی بات کے اوپر عمل کرتے، لیکن ہم بخاری جو بخاری نے لکھی ہے ہمیں کوئی بتلائے دنیا کا کوئی ہوش مند آدمی کہ بخاری نے اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور بھی بات اس کے اندر لکھی. امام بخاری نے عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہیں تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نہ کہ بخاری کی تقلید کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. غرض بے غیرتی اور بے حیائی کے تمام سرحدوں کو پار کرتے ہوئے یہ لوگ گالی گلوچ کے اوپر ہوں تراتے ہیں، مار کاٹ کے اوپر ہوں تراتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور اس کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. میرے عزیزو یہ تمام سب شرارتیں، یہ تمام سب بدماشیاں، یہ تمام سب بدتمیزیاں کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو حدیث و قرآن سے روک کر ان کے اپنے بنائے ہوئے گھریلو مذہب کو، خانہ سار دھرموں کو دنیا مان لے اور ان کی دنیا پیروی کرے. لیکن اے دنیا کے مسلمانوں، اے میرے نبی کی پیاری امت، پیاری امت کے لوگوں، ان گندم جو فروشوں کو پہچانو، ان دین کے ڈاکوؤں کو پہچانو، ان بہروپیوں کو اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے کہو کہ لوگوں اختلاف نہ کرو، امت میں فتنے نہ پھیلاؤ. آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں. علماء کرام کی مجلس ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. آؤ اختلافات ختم کر لیتے ہیں اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک مسئلہ، اللہ کی قسم ہے، کوئی ایک مسئلہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، تم ہمارا بتلا دو. رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اپنے اس مذہب سے، اپنے اس عمل سے توبہ پہلے آؤ ہم کو بتلاؤ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، لیکن افسوس نہ نومن تیل ہوگا نہ راتھا ناچے گی. نہ ایسا مسئلہ آئے گا، نہ یہ اختلاف کرنے والے جو پہلے سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جو آپس میں ایک تھالیوں میں نہیں کھا رہے ہیں، جو آپس کے ایک امام کے ماننے والوں کو برا بھلا آپس میں ایک دوسرے
दूसरे को कहते हैं तो हम तो खैर तीसरे ठहरे, हमें कब वो अच्छा समझेंगे और हमें कब वो अच्छा कहेंगे। मेरे अजीजों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह की कसम कि इन्होंने ही हमारे रास्ते रोके हुए हैं, इन्होंने ही हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हमें इस्लाम, हमारा फरीदा क्या था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए नबी की उम्मत के लोगों, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और लोगों को बुराइयों से रोको। तुम्हें लोगों के को पैदा किया गया है तुम्हें इसलिए ताकि तुम लोगों के अंदर दावत का काम करो। सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी दावत का काम करो, यहूदियों के अंदर भी दावत का काम करो, नसारा जितने भी लोग हैं, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, हमें इसलिए पैदा किया गया था कि हम उनके दरमियान भलाइयों का हुक्म दें, हम उन्हें जुल्म ज़्यादती से रोकें, हम उन्हें इस्लाम की दावत पेश करें, हम उन्हें इस्लाम की सच्ची तालीमात को उनके सामने रखें, हम इस्लाम की शमा लेकर जुल्मत कदों तक पहुंचे। हमें अपने बिरादरान वतन जो आज हमारे लिए कांटा बन चुके हैं, जो सूख चुके हैं, जिन्हें नरम करना और जिन्हें पिघलाना, जिन्हें अपना बनाना हमारा सेवा था, आज हमने उनको जब तर्क कर दिया, आज जब हमने उन्हें छोड़ दिया, तो आज हमारे लिए वो बबूल के कांटे बन चुके हैं और जगह जगह फित्नो फसाद करते हैं और हमें कत्ल और खून का निशाना बनाते हैं, फसाद फित्नो फसाद पैदा करके हमारे बीच बच्चों को जिंदा जलाते हैं, हमारे घरों को लूटते हैं और हैवान में तो बर्बरियत का नंगा नाच नाचते हैं। हमें क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने उन्हें दावत देना छोड़ दिया। हमारी तमाम मसाइल, हमारी तमाम जिद्दोजहद, हमारी तमाम कोशिशें, हमारे उलमा की, हमारे कुत्ताब की, हमारे मुसन्निफीन की, हमारे मुअल्लिफीन की, हमारे वाइदीन की, हमारे मुकर्रिरीन की, इन इस्लाम के अंदर बने हुए फिरका परस्तों की तरफ मबजूल है इनकी तवज्जुहात, और हम इन्हीं में जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम इन्हीं में कोशिशें कर रहे हैं और हम इन्हीं को कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं। यानी दूसरी जुबान में यूं समझ लो कि कलमा पढ़ने वाले जो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम इनको फिर उसी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा काम ये था कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गोशे गोशे को कुरान और सुन्नत की खुशबुओं से महकाएं और इन हैवानों को, इन जानवरों को इंसान बनाएं और हम इन्हें दीन इस्लाम पेश करें, इन्हें मुसलमान बनाएं। लेकिन बुरा हो इन बुरे उलमा का, इन बुरे उलमा का जो हमारी राहों में आ जाते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, हमें उन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये बुलहवस और ये दुनिया परस्त मौलवी हमें उन तक नहीं पहुंचने देता है। उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करके अपना मदरसा, अपना दारुल उलूम, अपना पेट, अपना जहन्नम पालने की कोशिश करता है। लेकिन ए नबी की प्यारी प्यारी उम्मत के लोगों, तुम्हें भी अल्लाह ने दिमाग दिया है, तुम्हें भी अल्लाह ने समझ दी है, तुम इतने बुद्धू नहीं हो। ये बताओ, कुरान करीम को मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने नबी के फरमान को मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर जब तुम्हारे सामने कुरान और सुन्नत का मनहज पेश किया जाता है, कुरान और सुन्नत की दावत पेश की जाती है, तो तुम कहां भटक जाते हो, कहां चले जाते हो? ये बताओ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम 400 बरस के बाद में या 200 बरस के बाद में या 100 बरस के बाद में या अपने नबी के बाद में हम 4 इमाम भेजेंगे, वन बाय वन, और तुम उनमें से एक एक को बांट लेना और उनमें से एक एक की तकलीफ करना, एक एक के पीछे चलना, उनके नामों के मजहब बदलना। बताओ, अल्लाह ने फरमाया है कहीं कुरान करीम में? या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कहीं? और मुझे बड़ी हैरत होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन 100 बरस में खत्म हो जाए और जो इल्म अरबा के नाम का बनाया हुआ मजहब है वो 13 बरस तो 100 बरस तक चलता ही नहीं। वाह भाई वाह, समझ नहीं आया आपको? नबी तो दीन लाए, वो 100 बरस तक स्टॉप खलास, और जो इन्होंने अपना मजहब बनाया शाफी, मालिकी, हम्बली और न जाने क्या क्या, ये आज 1300 बरस तक उनके बाद नहीं चल रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी को क्यों भेजा? सीधे चारों को भेज देता, काहे को ये मुसीबत और परेशानी करने की जरूरत थी भाई? और हमें आसमान से हुक्म दे देता 4 आएंगे, इन चारों की इन्हीं के पीछे चलना क्या जरूरत थी? हम मुत्तहिद रहते, हमें क्या जरूरत थी इख्तिलाफ करने? लेकिन औज़ु बिल्लाह, बुरा होता तासुब का ये सरासर बदजानती है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, इसको समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं तारीख अहले हदीस आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, मनहज अहले हदीस रख रहा हूँ, उनके खिदमत बयान करने, उनका तज़किरा कर रहा हूँ। तो आओ, अहले हदीस की तारीख क्या है, हमारी दावत क्या है, हमारा पैगाम क्या है, हम कहते क्या हैं, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले अहले हदीस का माना समझो और अहले सुन्नत का माना समझो। अहले हदीस अहले सुन्नत में कोई फर्क नहीं। जिस तरह हदीस में कोई फर्क नहीं, सुन्नत में कोई फर्क नहीं, इस तरह अहले हदीस और अहले सुन्नत में कोई फर्क नहीं। अहल कहते हैं वालिद, हमारे अहल वयाल यानी हमारे वाले है, अरबी का लफ्ज़ है।
अहल माने वाला। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को और तकरीर जो सहाबा कराम ने की है, जो अमाल किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरे उसके ऊपर महरे तस्दीक सब फरमाई है, खामोश होकर या ऐलान करके अलमा है, उसको क्या कहा जाता है? हदीस। और सुन्नत भी उसी को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, अमल को, तकारीर को सुन्नत कहते हैं। तो जो लोग हदीस और सुन्नत को पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, अपना मनहज दस्तूर बनाते हैं, उन्हीं को अहलुल हदीस कहा जाता है। वो लोग कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? वही तो अहलुल हदीस होते हैं। वही अहलुल हदीस। अहले हिंद किसको कहा जाता है? अहले पाकिस्तान, पाकिस्तान किसको कहा जाता है? जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो अहले पाकिस्तान है। जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं वो अहले बांग्लादेश है कि नहीं? जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो अहले हिंद है, अहले हिंदुस्तान है कि नहीं? तो इसी तरह से मेरे अजीजों, जो हदीस और हदीसों के ऊपर अमल करने वाले हैं वो अहले हदीस, वो अहले हदीस। और बाद लोग कहते हैं कि अहले कुरान क्यों नहीं कहते? कुरान भी हदीस, मैंने भी बताया, हदीस कुरान को भी शामिल है, नबी के फरमान को भी। इसलिए इस कलमे के अंदर दोनों चीजें हैं, इसलिए दोनों अच्छी चीजें मौजूद हैं, इसे अहलुल हदीस कहा जाता है। तो इस तरह से मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो अहले हदीस कौन है? अहले हदीस वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ रब के कुरान को और मुस्तफा जान रहमत के कौल और अमल और तकारीर को अपना मनहज और अपना तरीका बनाते हैं और मानते हैं। दूसरे अल्फाज में यूं कह लो कि अहले हदीस वो हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, नबी की सुन्नत को, सहाबा की सुन्नत को अपनी पेशानियों का झूमर बनाते हैं। और रब्बुल जुल जलाल ने इसीलिए इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। ऐ दुनिया के लोग, अगर तुम लोग उस तरह ईमान ले आओ जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए हैं, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। जिस तरह वो अमल कर रहे हैं और जिस तरह से उनका अमल, उनका ईमान और अकीदा और उनका मनहज है, अगर तुम उसी तरह से अमल करोगे तो तुम भी बोलो तुम हिदायत याफ्ता, तुम सही राह पे। बोलो कुरान का ये ऐलान सच्चा है झूठा? क्या सहाबा किराम के जमाने तक ही था? नहीं, ये कुरान क़यामत की सुबह तक के लिए है, ये दस्तूर है क़यामत की सुबह तक। तो मेरे अजीजों, इन्हीं को अहले सुन्नत भी कहा जाता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ मैं जरा सा तसलसल कायम रखने के लिए ये पॉइंट्स अपने ज़हनों में रखोगे तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं हो सकते। और अपने इन तमाम दावों की दलीलें मैं भी दे रहा हूं, आप घबराए नहीं। मैं साबित करूंगा कि सहाबा किराम अपने आप को अहलुल हदीस कहते थे, और उस नजिस नापाक आदमी को जाके कोई बतलाए जो ये कहता है कि अहले हदीस से कुफ्र की बू आती है, औज़ु बिल्लाह, ये सहाबा किराम की तौहीन नहीं है, ये ताबईन की तौहीन नहीं है, 500 सहाबा के शागिर्दों की तौहीन नहीं है, जिन्होंने अपने आप को अहले हदीस कहा, जो अहले हदीस के ऊपर फख्र करते थे, जो अहले हदीस की तरफ निस्बत करते थे, जो अहले हदीस अपने आप को कहते थे। ये तमाम ताबईन जो अइम्मा रहमहुल्लाह, इनकी तौहीन नहीं, मैं भी बताऊंगा। इनकी पूरी दलीलें, मैंने पूरी तारीख रखी है, वो आपकी खिदमत में रख के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि कहीं भी गुफ्तगू हो, यहां भी बैठे हुए अगर हमारे दरमियान हमारे भोले भाले ऐसे इख्वान मौजूद हों जो तकलीद के भूल भुलैयों में उम्मत में बटे हुए हैं, कोई हनफी, कोई शाफी, कोई मालिकी, कोई कादरी, कोई चिश्ती, कोई तिजानी, कोई जो फरमकदी, कोई फलानी, कोई फलानी, कोई फलानी, यहां से उठना, तौबा करके उठना हकीकतों को समझ लेने के बाद में, ताकि हमें जरूरत, और सुनो, हमें जरूरत है तुम्हारी। हम बहुत सीरियसली ये बात कह देना चाह रहे हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम भी मर जाएंगे इसी तरह से। हमारे से पहले जो उलमा आए, हमारी मुसलमानों की इस्लाह कर करके वो बेचारे मर गए, वो मर गए, चले गए, और जिनको सुधरना था सुधरे, जो नहीं सुधरे नहीं सुधरे। लेकिन अब हमारी मंजिल तुम बाद में होगे, अब नई कौमों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नई कौमों की तरफ हमें दावत देना है। नया ब्लड चाहिए इस दुनिया के लोगों, इस जुल्म को मिटाने के लिए, नया ब्लड चाहिए इंसानियत को उसकी मेराज तक पहुंचाने के लिए, नए खून की जरूरत है। अब हम अपनी तवज्जुहात बिरादरान वतन की तरफ करने वाले हैं, हम गैर मुस्लिमों के दरवाजों पर दस्तक देने वाले हैं। हमारे उसके लिए हमारी राहों में जो भी मसाइल और दुश्वारियां आएंगी, हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे घर जला दिए जाएं, हमारे घर लूट लिए जाएं, हमारे बच्चों को तहत कर दिया जाए, लेकिन तौहीद के इस पैगाम को हम बड़े से बड़े लीडरों से लेकर के छोटे से छोटे करियों और बस्तियों में रहने वाले वो शोध, वो छूत या वो नीच जात के लोग भी, बड़े बड़े ब्राह्मण हों या किसी भी जात और पात के रहने वाले हों, गैर मुस्लिम हैं, हम इस तौहीद की दावत को उनके दरवाजों तक पहुंचाने वाले हैं, उनके कानों में डालने वाले हैं। तुम्हें सुधरना है सुधरो, नहीं सुधरना है अल्लाह के हवाले। हम अब तुम्हारे ऊपर ज्यादा वक्त सर्व करने वाले नहीं हैं।
क्यों? अब हम दुश्मन की साजिशों को समझ चुके हैं। हमारे अपने इस्लाम के नाम लेकर के, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर जो दुश्मनियां जो हमारी राहों में, तौहीद की राहों में आ रहे हैं, अब हम उनकी तबीयतों, उनके मिजाजों को समझ चुके हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि हम आमीन रफे देर में घिसते रहें, पिटते रहें, और वो हमारा जो असली मकसद कुफ्फार और मुशरिकीन तक इस्लाम की दावत को पहुंचाना है, वो रुका रहे, उन तक न पहुंचे, उनमें उनको जो है दूसरे धारे में छोड़ दिए। इसी तरह कत्ल गारत के लिए होते हैं। अब आपको समझना है इस हकीकत को, क्योंकि समझाने के लिए अक्लमंद आदमी के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती है। अगर समझना है समझो, नहीं समझना है तो